लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Aditi Tandon and joining me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मतदाता जागरूकता पर भी करेंगे बात। चर्चा के लिए हम स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। So let's have the headlines first before we go to the discussions related to elections. Supreme Court refuses to stay a new law on the appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners. Election Commission issues transfer orders for non-cadre officers posted as District Magistrate and Superintendent of Police in Gujarat, Punjab, Odisha and West Bengal. The Bharatiya Janata Party has released the third list of 9 candidates in Tamil Nadu for Lok Sabha elections, and the Indian National Congress has issued its list of 34 candidates for the ensuing assembly elections in Arunachal Pradesh. सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून के तहत रोक लगाने से किया इनकार। निर्वाचन आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात गैर काडर अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु से 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। Now the news in detail. The Supreme Court has refused to stay the new law on appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners. A bench comprising Justices Sanjeev Khanna and Dipankar Datta said that it cannot stay the law at this stage when the Lok Sabha polls are already approaching. The bench said nowhere in the Constitution Bench judgment it was said that who would be the members of the selection committee. The apex court was hearing a batch of pleas seeking a stay on the new law, Chief Election Commissioner and other Election Commissioner appointment, conditions of service and terms of office Act 2023, which was passed by the Parliament last December. The Supreme Court also noted that there are no allegations against the newly appointed Election Commissioner Ganesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu. निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात गैर काडर के अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पारिवारिक संबंध होने के परिदृश्य में आयोग ने पंजाब के भटिंडा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और असम के शोनितपुर में पुलिस अधीक्षक के लिए भी स्थानांतरण निर्देश जारी किया है। इन 2 राज्यों के अधिकारियों को प्रशासन में किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरित किया गया है। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को डीएम और एसपी के रूप में तैनात गैर काडर के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। The Election Commission has directed Electronics and IT Ministry to immediately halt the delivery of Viksit Bharat messaging over WhatsApp. The Commission has said that it has received several complaints that such messages are still being delivered on citizens' phones despite the announcement of general elections. In response, the Ministry has informed the Commission that although the letters were sent out before the Model Code of Conduct came into force on March 16, some of them could have possibly been delivered to recipients with a delay because of systemic and network limitations. भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए निर्वाचन प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने राजस्थान के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा और हरियाणा के लिए सतीश पूनिया तथा सुरेंद्र सिंह नागर को नियुक्त किया है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश के लिए अरुण सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह को प्रभारी बनाया है।
Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan will contest from Nilgiri's Lok Sabha seat, while former Telangana Governor and Lieutenant Governor of Puducherry Tamilisai Soundararajan will fight from Chennai South seat. The BJP today released the third list of 9 candidates for the ensuing Lok Sabha polls in Tamil Nadu. State BJP Chief K. Annamalai has been fielded from Coimbatore Lok Sabha constituency. As we know, Tamil Nadu will go to elections in the first phase on April 19. Earlier, the party had released a name of 267 candidates for the general elections. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में श्री खड़गे ने केंद्र पर कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस रोक को तुरंत हटाने की मांग की कि जिससे पार्टी चुनावों में अपने पार्टी फंड का उपयोग कर सके। Indian National Congress has released names of 34 candidates for the assembly elections in Arunachal Pradesh. The state has a total of 60 seats in the Legislative Assembly. The Central Election Committee of the Congress announced the names today. The state will go in for simultaneous elections for 2 Lok Sabha and 60 assembly seats in single phase on April 19. Among the Congress candidates, the prominent names are Takam Pario, who will contest from Palin constituency, Kumar Y from Bameng seat, and Tanga Bailing from Nacho Assembly constituency. Sunny Phunstock will contest from Mukto constituency against BJP candidate and Chief Minister Pema Khandu. BJP has already declared its list for all the 60 seats in Arunachal Pradesh. National People's Party has fielded 34 candidates and the Nationalist Congress Party will contest from 17 seats. Aam Aadmi Party has said it will not contest in the parliamentary and assembly elections in Arunachal Pradesh. Let's now get some comments from our expert. Santosh ji, let's discuss the BJP's third list for Tamil Nadu. As we know that 9 candidates have already been declared and Tamil Nadu is a state where the BJP is still struggling for a foothold. What is your assessment? देखिए अदिति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव है हम इसको आम चुनाव कहते हैं हमेशा, लेकिन 2024 का चुनाव अपने आप में एक बेहद खास है, विशेष चुनाव है ये, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि दुनिया का मतलब इस समय सबसे बड़ा ये चुनाव है जिसमें 97 करोड़ वोटर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो आपने अभी सवाल किया भारतीय जनता पार्टी की साउथ वाली स्ट्रेटजी को लेकर के, तो अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकांश सीटें रही हैं, चाहे 2019 के चुनाव में देखें या 2014 के चुनाव में आप देखें, तो उन्होंने नॉर्थ और ये जो वेस्ट वाले इलाके हैं उस पर काफ़ी रहा है, लेकिन साउथ में उनका जो अभी आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपने ये देखा होगा 16 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया गया, लेकिन उससे पहले ही 15 से लेके 19 तक, यानी 15, 16, 17, 18, 19 पूरे 4-5 दिन प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम थे वो पूरी तरीके से साउथ सेंट्रिक थे, साउथ में ही सारा कार्यक्रम किया। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, चुनाव से पहले भी, तो प्रधानमंत्री ने जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब हुआ था, तो उससे पहले भी उन्होंने साउथ के इलाकों में काफ़ी फोकस किया था अपने आप को। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है और जो 400 पार का नारा दिया गया है, 370 अपना और अलायंस मिला के 400 पार का नारा, तो उसमें दक्षिण भारत एक भूमिका निभाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी अपने तर्कश में कोई तीर नहीं छोड़ना चाहती कि हम साउथ में नहीं हैं, तो साउथ की एरिया पे अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हैं जी। और अभी पट्टाली मक्कल काची पीएम के पार्टी के साथ भी गठजोड़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो गठजोड़ किया है भाजपा ने, क्या तमिलनाडु में भाजपा की संभावनाओं को और अभी आप क्या बढ़ते देखते हैं कि इसके बाद कुछ भाजपा का आधार वहां पर बढ़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखना होगा कि आज निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मैं अगर सीधे सीधे नाम लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो क्रेज है, जो एक आकर्षण है, उसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज के समय में मनोवैज्ञानिक तौर पर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बढ़त लिए हुए है नेतृत्व के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी। भारतीय जनता पार्टी
इस जो आप कह रहे हैं कि जो उनकी जो एक एज लिया हुआ है, उसके बावजूद अपनी स्ट्रेटजी में ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती पार्टी कि आपको बाद में लगे कि अरे मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। जैसे आप पीएम की बात मैं करूंगा अभी, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूट गया था, बहुत तरह के ऐसे मतभेद हो गए थे, द्वार बंद कर दिए गए थे, लेकिन चूंकि वहां के जो सामाजिक समीकरण, सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात होती है, उस पे उनका बहुत जोर रहता है। और चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट आप देख लें, ये अपनी ओर से कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए पीएमके से जो उन्होंने गठबंधन, जो इनका गठबंधन है, गठबंधन निश्चित तौर से अपने आधार को और बढ़ाने के लिए किया है, ताकि जो उनका अपना लक्ष्य है वो पूरा हो सके। बुनियादी समस्या आप क्या देखते हैं, बुनियादी प्रॉब्लम क्या देखते हैं कि भाजपा जो है दक्षिण में अपना आधार बढ़ाने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत रही है। कर्नाटक तो उसने फतह किया, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल हमेशा से साबित हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि भाषा एक बड़ा अवरोध बनती है भाजपा के लिए जब कर्नाटक से आगे बढ़ती है भाजपा, तमिलनाडु की तरफ जाती है, या फिर संगठन के स्तर पर अभी आपको लगता है कि कुछ और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है पार्टी के संगठन को वहां पर? देखिए, उन राज्यों की जब बात आप कर रहे हैं, खासकर तमिलनाडु या बाकी जो राज्यों की बात कर रहे हैं आप, वहां एक जो रीजनल एस्पिरेशन है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने जो एक क्षेत्रवाद वाला जो मुद्दा हावी रहता है वहां पे, उसको बीजेपी अभी नहीं तोड़ पाई है। बीजेपी इसीलिए इस इलेक्शन में वो जो साउथ और नॉर्थ का जो एक भेद कई बार पॉलिटिक्स में दिखा दिया जाता है, उसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। चाहे आपने देखा होगा कि सरकार ने जो काम किए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बात जब हुई थी, तो स्थानीय भाषाओं में उसको आगे बढ़ाने की बात की गई। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भाषा का अवरोध थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वहाँ रीजनल लेवल पे नेता उभर के आ रहे हैं। अभी जैसे के अन्नामलाई की बात हुई, बहुत स्ट्रांगली बीजेपी उभर के आती हुई दिख रही है वहाँ पे। तो निश्चित तौर से, और जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस 2+2 4 हो गया, ऐसा नहीं होता है। 2+2 22, यानी उस समय लगता है। बीजेपी 2 से आज 303 तक पहुंचने में बीजेपी का सफर आप देखेंगे तो बहुत लंबा रहा है। No, because see, Prime Minister has focused very actively in Tamil Nadu. We know that the Sengol has been installed in the new Parliament building. Then Prime Minister has already led 2 editions of Tamil Kashi Sangamam, through which he is reviving the old historical ties between his own parliamentary seat and Tamil Nadu. So this is a very deep connection he is trying to establish, something that he believes will transcend the boundaries of language and regions. Do you think it will make an impact? निश्चित तौर से। देखिए, जिस तरीके से सेंगोल को लेके उन्होंने पहले जब वहाँ पता किया, इस इतिहास को शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे। जब उस पर रिसर्च किया गया, मालूम चला कि वो सेंगोल आनंद भवन में रखा गया है, उसको एक छड़ी के रूप में दिखाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको जिस तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा, जो मैं अगर कहूँगा 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सेंगोल एक संवैधानिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हुई है सेंगोल की। और अभी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ पहला नए संसद भवन में, तो आपने देखा होगा कि एक सेंगोल को लेके एक आगे जो है चल रहे थे। तो निश्चित तौर से देखिए, राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, और उस प्रतीक को चूंकि एंटर करने के लिए, अपने बेस को बढ़ाने के लिए, मैंने पहला जो आपसे इससे पहले आपसे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी होती है कि अपने तर्कश में कोई तीर नहीं रखती है। वो हर समय, हर युद्ध में अपने तर्कस के सारे तीर निकालती है। वो ये भी स्ट्रेटजी उसी का हिस्सा है। और अब सबसे पहले हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय संवाददाता विकल्प शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकल्प, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है, इसके बारे में हमें सबसे पहले आप बताइए कुछ। जी, जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, और पहले चरण में 19 अप्रैल को सिर्फ 1 सीट, जो बस्तर की सीट है, वहां पर मतदान होगा। उसके बाद दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 3 सीटें, ये हैं राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
यहाँ पे दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा और फिर तीसरे और अंतिम चरण के तहत 7 मई को राज्य की जो बाकी 7 सीटें हैं वहां पर मतदान होगा। और छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्र विकल्प नक्सल प्रभावित रहे हैं और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग की चुनाव से जुड़ी क्या तैयारियां आपको वहां दिखाई दे रही हैं इस बार? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसा भी मैंने आपको बताया कि कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर 3 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इसकी वजह ही यही है कि छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से है जो कि सबसे अधिक नक्सल प्रभावित हैं। पहले चरण में सिर्फ एक सीट बस्तर के लिए चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में भी जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, वे आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित हैं। बस्तर संभाग पूरा ही नक्सल प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, जिनमें से 14 जिले नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित हैं। और जहां तक चुनाव की आयोग की तैयारियों की बात है, तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। यहाँ पर पिछले साल ही विधानसभा चुनाव हुए हैं नवंबर में और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव संपन्न कराए गए हैं और उसी तरह की तैयारियां इस बार लोकसभा चुनाव को भी लेकर हैं। तो जो भी नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं, दूसरे राज्यों की जो सीमाएं जहां लगती हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उन इलाकों से नक्सलवादियों की आवाजाही ना हो सके से रोकने के लिए इंटर स्टेट नाके बनाए गए हैं। और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर चुनाव आयोग के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां होती हैं। पहली है जो चुनाव कर्मी है उनकी सुरक्षा करना, जो मतदान के लिए लगे रहते हैं या मतगणना के लिए उनकी सुरक्षा। दूसरा है मतदाताओं की सुरक्षा और तीसरा है उन इलाकों में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा। तो ऐसे करीब 150 पोलिंग बूथ हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया था। कुछ ऐसी ही तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए है और मतदाताओं की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है उनको ज्यादा दूर जो है वो ना चलना पड़े मतदान करने के लिए और उनको उनके गांव के पास ही मतदान केंद्र स्थापित किया जाए, ऐसी हर संभव कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जहां तक उम्मीदवारों की सुरक्षा की बात है, तो ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे उम्मीदवारों को कहा गया है कि वे अपना प्रचार अभियान, जो दौरा कार्यक्रम, उसकी जानकारी पहले से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दें ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। जी विकल्प, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Santosh, I'd like to bring you in here. You see, the last election, just concluded election in Chhattisgarh, was largely peaceful, and we also saw that there was no major activism from the Maoist cadres. Like earlier, we used to, see they would also threaten candidates. They would make life very difficult for anybody who wants to go to voting also. And like Vikalp just told us that the Election Commission has ensured booths even in areas that are in deep red zones. So the process of democratization of the Naxal hotbeds is underway. How much of it do you think has been achieved? Because Union Home Minister Amit Shah has repeatedly said that in another 2 years, India will be free from Naxalism. देखिए, निश्चित तौर से मैं ये जो बस्तर रीजन में पहले फेज में जो चुनाव होने जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं तो मैं छत्तीसगढ़ खुद कई बार जाके देखा है और बस्तर रीजन की मैं बात करूं, मतलब चुनाव से पहले अगर मैं कहूं तो बस्तर नक्सलवाद को लेके बदनाम जरूर है, बट प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब आप कह सकता हूँ पर्यटन के लिए हाथ से बहुत ही बढ़िया जगह है। चाहे वो आप जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल देख लें, तीरथगढ़ देख लें, इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जो सबसे बड़ा इलाका जो माना जाता है उसके हिसाब से दंतेवाड़ा, आप दंतेवाड़ा चले जाएं, आप लुटियन दिल्ली को भूल जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास की जो पहुंच, जो अभी आपने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 2 साल में नक्सल फ्री वाली की बात जो है, वहां चुनाव आयोग की तैयारी और चुनाव आयोग हमेशा मैंने ये देखा है कि कोशिश रहती है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, निश्चित तौर से जो नक्सलवादी हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उन इलाकों में चुनाव को प्रभावित करें। तो इसलिए 3 फेज में 11 सीट हैं, लेकिन 3 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं।
तो ये इनकी जो तैयारी है कि किस तरीके से हमारा फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, उसी तैयारी के तहत इसमें चीज़ें की गई हैं। और बस्तर वाला जो रीजन है, आप देखेंगे कि उस पूरे इलाके में CAPF हमेशा ही तैनात रहती है और पूरी निगरानी रहती है। आई थिंक वी हैव धर्मेंद्र विद अस फ्रॉम पटना। धर्मेंद्र, एक बात बताइए, बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है और इसमें से 2 सीटें बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। इसमें से जमुई रिजर्व सेगमेंट है जहां से चिराग पासवान अभी सांसद हैं, और नवादा भी है जो कि इस बार LJP के कोटा से बीजेपी ने ले ली है सीट अरेंजमेंट में। आप कैसे देख रहे हैं तैयारियों को और राजनीतिक समीकरणों को? क्या जमुई से दोबारा चिराग पासवान लड़ेंगे? नहीं, जैसा कि चिराग पासवान ने, जो NDA गठबंधन है, उनकी पार्टी को 5 सीटें दी हैं और उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि जो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो उनके पिता का जो पारंपरिक लोकसभा सीट रहता था। और जो जमुई की सीट है, जो चर्चा है उसमें कि वो अपने ही परिवार के एक सदस्य को किसी को देने की तैयारी है उसकी। और नवादा में क्या होने जा रहा है? भाजपा लड़ेगी इस बार? जी, नवादा में थोड़ी सी अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है कि भाजपा वहां से किसको टिकट देने जा रही है। लेकिन एक बदले राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने वहां से जो है अपने एक नए पार्टी कैंडिडेट को जो है सिंबल आवंटित किया है। हालांकि उसकी जो घोषणा है औपचारिक रूप से नहीं हुई है, तो वे चुनाव लड़ेंगे और उनका श्रवण कुशवाहा नाम है। और इसी तरह से कुछ अन्य सीटों पर भी राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी प्रत्याशियों को, जो संभावित पार्टी प्रत्याशी हैं, उनको चुनावी चिन्ह दे दिए, क्योंकि जो नामांकन की जो अंतिम तारीख है, अब समय काफी कम बचा हुआ है और 28 तारीख को ही उस नामांकन का अंतिम दिन है चारों सीटों पर। तो पार्टियां जो है 25 तारीख को ज्यादातर सीटों पर जो है प्रत्याशी नामांकन करेंगे और जो बड़ी पार्टियों की संभावना है कि उनके उम्मीदवार 28 मार्च को जो है अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी Santosh ji, bringing you in again on Bihar. Bihar is going to be a very interesting contest this time. As we know that Nitish Kumar and for the first time JDU is contesting lesser number of seats than the BJP. BJP is contesting 17, JDU 16 and LJP 5 and the other smaller partners 1 each, HAM and Rashtriya Lok Manch. How do you see the situation panning out? Do you think the opposition is still strong? Is there a fight or do you see it one-sided? What's your take? देखिए, बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको बिहार के थोड़े से बैकड्रॉप उसमें जाना पड़ेगा। सन 2000 के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उससे पहले की जो राजनीति थी और उसके बाद की राजनीति, उस राजनीति में जो मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसका बड़ा महत्व रहता है। ये जो गठबंधन, जो आप कह रहे हैं कि नए सिरे से जो गठबंधन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समीकरण की वजह से हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल की जो बात है, वो एक जो वहाँ का जो वोट समीकरण है, अगर उसको आप देखेंगे तो लगभग 30% उनके पास जो चंक है, जिसको MY फार्मूला कहा जाता है बिहार के अंदर, वो 30% उनके पास एक चंक हमेशा बना हुआ रहता है। ये 30% में बीजेपी बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत सेंध लगा पाती है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो पाता है। लेकिन बीजेपी ने गठबंधन किया ही इसलिए है कि जो सामाजिक समीकरण है उसको मोदी वेव के साथ साधा जा सके। और गठबंधन की बात मैं समझाना चाहूंगा कि बिहार बीजेपी के पास जो अपना बेस होता है, और नीतीश कुमार, यानी जो सन 2000 के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसा ग्रुप हो चुके हैं कि अगर वो उधर जाते हैं तो 45% का चंक बनता है और इधर आते हैं तो लगभग 45 से 50% का चंक बनता है। या नीतीश कुमार बीच में बहुत बड़ी धुरी बन चुके हैं। इसीलिए बीजेपी ने तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, पुराने मतभेद को दरकिनार करते हुए गठबंधन किया है। और इस बार बीजेपी ने यह बढ़त जरूर ली है कि जो पिछली बार बंटवारा की आधी सीटों का बंटवारा होगा, हम 16 सीटें पिछली बार लड़े थे, बीजेपी ने कहा नहीं, जो विधानसभा में हमने बढ़त ले रखी है, तो इस बार हमें 17 और 15 की बात हो रही थी, लेकिन 17 और 16 पे कंप्रोमाइज हुआ।
और अब हम चलते हैं राजस्थान, जयपुर में हमारे संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र वहाँ हैं हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र, राजस्थान की 12 सीटों के लिए पहले चरण में जो मतदान हो रहा है उससे जुड़ी क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है, और ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन राजनीतिक दलों के ओर से अभी तक नामांकन भरे जाने की सूचना है आपके पास? देखिए, अभी तक जिन 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है वहां पर नामांकन अभी तक धीमा है। अभी तक केवल 2 नामांकन भरे गए हैं। और अपडेट की बात करें तो नेताओं का आना जाना, एक दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया जारी है। एक भाजपा के लीडर हैं प्रहलाद गुंजल, तो ये शेखावाटी से आने वाले नेता हैं। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी प्रकार कल परसों भाजपा में भी कई नेता शामिल हुए हैं। अभी तक किसी बड़े चेहरे ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। कांग्रेस ने अभी तक 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि भाजपा की ओर से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जानकारी के लिए। और राजस्थान की बात करें संतोष जी, तो आज राजस्थान समेत हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए भी भाजपा ने निर्वाचन प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजस्थान की हम बात करते हैं तो विनय सहस्त्रबुद्धे और विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा, इनको अब निर्वाचन प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है राजस्थान के लिए। राजस्थान में इन प्रभारियों की नियुक्ति क्या बताती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और जितने भी इस तरह की तैनाती होती है तो उसमें एक योग्यता वाला मापदंड तो होता ही है, लेकिन सामाजिक समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से साधते हैं। प्रवेश वर्मा को भेजने का जो मतलब है वो बहुत क्लियर है कि किस तरीके से जो वहाँ एक कई बार जो जाट समुदाय में नाराजगी रहती है उसको किसी तरीके से ठीक करना है, और उस पर्पस उस उद्देश्य से उनको बनाया गया है। उसी तरीके से अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो सतीश पुनिया भी वहाँ पे जाट हैं, उनको इधर हरियाणा में बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह की कोई नियुक्ति करती है उसमें सामाजिक समीकरण और उसके राजनीतिक निहितार्थ होते ही हैं। तो सतीश पुनिया जी को यहाँ लाने का मकसद आपको क्या लगता है? हरियाणा में क्या हो सकता है? क्योंकि हरियाणा में तो ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फेवरेबल ही नज़र आ रहा है। अब मनोहर लाल खट्टर, हालांकि वो नॉन जाट हैं और उन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया, उसका क्या नज़र आता है? देखिए, निश्चित तौर से देखिए, हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही एक नॉन जाट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है, लेकिन जाट भी नाराज ना हो उसके लिए वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय को पीछे छोड़ देना है। बिल्कुल संतोष कुमार जी, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable input. For that we are very thankful to you. और धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं को भी और श्रोताओं को भी। आप सभी से अनुरोध है हमारा कि लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र जाकर अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।